So now we will discuss CMAT 2023 slot 2. First we will do from question number 41, that is, and then after we will come to maths and reasoning. Okay, so let's move to, because it takes less time for us. So we know 100 questions are asked in CMAT exams. 20 maths, 20 reasoning, 20 English, 20 GK and 20 इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 41 से 100 करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे का करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. पिक द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोस्क्राइब यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. ओके, पहले प्रोस्क्राइब का मतलब समझते हैं. प्रोस्क्राइब का मतलब होता है निषेध करना, मना करना. आर्म्स कल्चर शुड बी प्रोस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट. तो आर्म कल्चर को प्रोस्क्राइब करना चाहिए, प्रोहिबिट करना चाहिए. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रोहिबिटेड. 42 फिल इन द ब्लैंक्स करना है. ओके, किससे भरना? पहला वाला में इज और आर में से सेलेक्ट करना है. तो गोल्ड एंड सिल्वर, दो आ गया, आर प्रीशियस मेटल. गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल. द शिप विथ इट्स क्रू was lost. No nook or corner was left unexplored. Neither my friend nor I am to blame. So पहला में R होगा, दूसरा में was, तीसरा में was, चौथा में M. ठीक है, ऑप्शन डी. Now let's move to question number 43. Choose the word that is closest in meaning to the following statement. A medicine to counteract poison is known as antidote. Pick the correct sentence. I have passed the examination last year. Option B, I passed the examination last year. Option C, I am passing the examination last year. Option D, I passed the examination last year. तो सबसे सही ऑप्शन डी है. I don't need to explain it. आई एम पासिंग तो होता नहीं है. ठीक है, आई पास द एग्जामिनेशन, और ये तीनों गलत है. ऑप्शन डी सही है. चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम. कैच 22, 22 को पकड़ो. मतलब व्हेन वन प्रॉब्लम कॉजेज अनदर प्रॉब्लम विच देन कॉजेज द फर्स्ट प्रॉब्लम अगेन. मतलब जब एक प्रॉब्लम था, उसने दूसरा प्रॉब्लम को जनरेट कर दिया, और पहला और दूसरा प्रॉब्लम की वजह से फिर से पहला प्रॉब्लम और बढ़ गया. तो इसे हम कहते हैं कैच 22. नाउ वी हैव द पैसेज. व्हाट इज रिलीजियन? अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. वी नो religion and we live religion, but how do we explain or define religion? Religion is one of the most sensitive and vulnerable aspects of human life from the very beginning. Thought it looks simple, it is not a simple reality to be easily defined or explained. There are many theories proposed regarding the origin of religion as a result of the development of speculative, intellectual, and scientific mind. However, in spite of the differences in the understanding of this important element, it is confirmed that it is purely a human activity and it has become an inevitable aspect of human life. In the West, under the influence of inherited tradition of Judeo-Christian tradition, religion was understood more theistically, while in the East it was mostly a response to the experience of the natural powers that are beyond human control and also to the inner urge for an ethical and moral reference. Etymologically, the word religion is derived from the Latin root religare, and it means to bind fast. Then religion has certainly a strong emphasis on community aspects. It is something that binds fast the members of it together. When we start thinking seriously on religion, naturally we fall upon thoughts of the definition of religion. There are numberless definitions of religion. The meaning and definition of religion differs according to the socio-cultural and psychological background of the person who reflects upon it. Even the political setting inserts its influence on the understanding of the meaning of religion. Some of the definitions are phenomenological and try to expose the common element that we see in the acknowledged world religions. For example,
the human recognition of a superhuman power entitled to obedience and worship. Some others are interpretative definition. तो ये एक पैसेज हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो इस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, तो नाउ लेट्स सॉल्व। पहला 46, द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिलीजियन डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? सोशियो कल्चरल हाँ, पॉलिटिकल हाँ, साइकोलॉजिकल हाँ, फिनोमिनोलॉजिकल। बिल्कुल सही, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। In which tradition religion is seen as a response to the experience of the natural power? किस ट्रेडिशन में रिलीजन को देखा जाता है एज अ रिस्पॉन्स टू एक्सपीरियंस ऑफ नेचुरल पावर? ईस्टर्न ट्रेडिशन में देखा जाता है। विच ऑफ द फ्रेजेस इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू एटाइमोलॉजी? एटाइमोलॉजी का मतलब क्या होगा? ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। एटाइमोलॉजी का मतलब क्या होता है? ऑरिजिन ऑफ वर्ड और उसका मीनिंग। Which of these statements are correct with reference to the above passage? पहला, religion is one of the most sensitive aspects of human life form। बिल्कुल सही। religion is purely a human activity। बिल्कुल सही। religion does not bind the member of a community together। गलत, bind तो करता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हमें मैच द फॉलोइंग करना है, और फॉरेन फ्रेजेस दिया गया और उसका मीनिंग दिया हुआ, तो उसको मैच करना है। कार्प डाइम, कार्प डाइम का मतलब होता है सीज द डे, दिन को सीज द डे यानी कि दिन बंद कर दो, जो भी है। फॉक्स पास, फॉक्स पास का मतलब होता है एन एम्बैरेसिंग ब्लंडर। मैग्नम ओपस, मैग्नम ओपस का मतलब होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। मैग्नस ओपम द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी का मतलब होता है एक्सेप्टेड एज सच अंटिल प्रूवन। प्राइमा फेसी मीन्स एक्सेप्टेड एज सच अंटिल प्रूवन। तो कार्प टाइम का मतलब होता है सीज द डे। फॉक्स पास मतलब एन एम्बैरेसिंग ब्लंडर। मैग्नम ओपस मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, एंड प्राइमा फेसी मीन एक्सेप्टेड एज सच अंटिल प्रूवन। इस हिसाब से ऑप्शन सी। Replace the phrase in italics in the given sentence from the options given below to make grammatically correct sentence. Okay, I don't think you need to explain the situation. Your conduct is speaking itself. तो speaking itself की जगह क्या सबसे बेस्ट होगा? Speaks for itself. Option B. Okay, question number 52. Read the sentences given below. I do not know whether he will come or not. Okay. Question क्या पूछा? Choose the correct answer. हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट, ये सही है। आई डू नॉट नो डैट ही विल कम और नॉट, तो डैट तो यूज़ होता नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 53, इससे हमें अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में। सो देखो, इसको हम एलिमिनेशन से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। एट अदर्स टाइम इट का बात तब किया जाता है जब पहले कोई बात हो चुका है, तो पी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए कट गया। दिस स्पॉन्टेनिटी इज इंजॉयड बाई बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। दिस से कभी सेंटेंस शुरू जनरली हम लोग देखते हैं, एक स्टार्ट नहीं मिल रहा, तो आर भी नहीं हो सकता। एस देखो, इट्स से तो ऐसे भी नहीं होगा, तो चलो फिर भी आर और क्यू में से एक हो सकता है। ज़्यादा संभावना अगर तुम पढ़ोगे तो क्यू है। चलो मैं रीड कर देता हूँ। और पहले होगा क्यू। ओरल स्टोरी टेलिंग इज एन ओल्ड वाइड स्प्रेड एंड मच लव ट्रेडिशन इन मैनी कल्चर। It's then S. It's sometimes a performing art that involves interaction between the storyteller and the audience code. Then P. At other times, it is spontaneous communication within a small group of people. And finally R. This spontaneity is enjoyed by both children and adults. Option B is the right answer. Next question 54. Find out which part of the sentence has an error. The primary objective of the essay is to draw analogies between the two work, addressing the common memories and trauma of dislocation no error. तो देखो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसे, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एसे क्या है? इज टू ड्रॉ एनालॉगीज, एनालॉगीज ड्रॉ करना बिटवीन द टू, दो के बाद किया जाता है, प्लूरल का यूज़ किया जाता है, टू वर्क्स होगा ना कि वर्क होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 55. फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इजंट इट? तो यहाँ पे देखो, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इज नहीं होगा, इज क्योंकि यूज नहीं हुआ है, तो डज होगा, डजंट इट होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इजंट इट गलत है, डजंट इट होगा उसके जगह। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एक्टिव वॉइस सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। ओके, द चाइल्ड वॉज लुक्ड आफ्टर बाई द मेड, तो करेक्ट क्या होगा? द मेड लुक्ड आफ्टर द चाइल्ड, ऑप्शन ए। पैसिव एक्टिव करना, एक्टिव पैसिव वाला। 57. Choose the correct one word substitute for the following phrase.
लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत ही शॉर्ट टाइम की लास्ट करता है उसे एफर्मल कहते हैं, ऑप्शन सी। वल्नरेबल मतलब जो आसानी से शिकार हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, एफॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। कौन सा सेंटेंस इसमें से करेक्ट है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, लेट्स रीड। शी वॉज पोरिंग वाटर इन द जग, सही है। माई फादर वॉज एंग्री विथ माई ब्रदर, सही है। रामा हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 1975, गलत है, सेंस होगा, सी गलत है। द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द बेगर, सही है। द पेशेंट वॉज क्राइंग ऑन पेन, क्राइंग, द पेशेंट वॉज क्राइंग ऑन पेन तो होगा नहीं, पेशेंट वॉज क्राइंग बिकॉज ऑफ पेन, इन पेन, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। माई मदर कुक्स इटालियन फूड एवरी डे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इटालियन फूड इज कुक्ड बाय माई मदर एवरी संडे। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर, किसमें एरर हमें ये पता लगाना है। नाइदर ही नॉर आई आर रॉन्ग, सिंपल से आई के साथ एम जाएगा, तो ऑप्शन सी। नाउ लेट्स मूव टू जी के। हु वॉज एसोसिएटेड विद द फिलोसफी डिविनिटी इन ह्यूमैनिटी, इस फिलोसफी से कौन संबंधित था, तो ऑप्शन है स्वामी रामकृष्ण परमहंस संबंधित थे। मैच द फॉलोइंग करना है। ओके, सोलैरीमीटर सोलर रेडिएशन, सोलैरीमीटर सोलर रेडिएशन को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। एनीमोमीटर विंड के वेलोसिटी को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। थर्मोकपल, थर्मोकपल जो होता है वो टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ होता है, थर्मोक्यूपल या कपल और टेम्परेचर नापने के लिए होता है। और वेंट्री ट्यूब, वेंचुरी ट्यूब फ्लो ऑफ लिक्विड को नापने के लिए होता है। तो क्लियर, सोलैरीमीटर सोलर से संबंधित, एनीनोमीटर विंड से संबंधित, थर्मो यानी टेम्परेचर और वेंट्री ट्यूब फ्लो ऑफ लिक्विड के हिसाब से, तो ऑप्शन डी। एक और मैच द फॉलोइंग। रंगराडो, तो रंगराडो जो फुटबॉल से संबंधित है। MCG मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड, क्रिकेट से संबंधित है। यूनाइट्स सेंटर बास्केटबॉल से संबंधित है। और रोड्स सॉफ्टबॉल से संबंधित है। एक्चुअली ये स्टेडियम के प्लेसेस के नाम है, वो उस हिसाब से प्लेसेस किस कहाँ से उससे रिलेट करना है, तो सिंपल है। MCG क्रिकेट से संबंधित है, रनग्राडो फुटबॉल से, यूनाइटेड सेंटर बास्केटबॉल से और रोड्स सॉफ्टबॉल से, ये ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। द ऑथर ऑफ द बुक द स्ट्रगल इन माई लाइफ, द स्ट्रगल इन माई लाइफ का ऑथर कौन है, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग करना है। पहला है ओनली इंडियन टू विन 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल इन 2012। 2012 में एकमात्र भारतीय जिन्होंने 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीता वो थे सुशील कुमार। द फर्स्ट इंडियन एंड ओनली प्लेयर फ्रॉम हिज स्पोर्ट्स टू compete at 7 ओलंपिक गेम्स, 7 ओलंपिक गेम्स उन्होंने compete किया है। इसका नाम क्या है, लिएंडर पायस। द यंगेस्ट इंडियन पार्टिसिपेंट एट 2000 सिडनी ओलंपिक टू विन गोल्ड मेडल फॉर हिज कंट्री, गोल्ड मेडल जीता था अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए, अभिनव बिंद्रा। द फर्स्ट इंडियन टू बी वर्ल्ड चैंपियन इन एनी स्पोर्ट एंड टू बिकम द रेसिपिएंट ऑफ बोथ अर्जुना और द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुना और द्रोणाचार्य अवार्ड दोनों मिला था, विल्सन जोन्स को मिला था। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 बताना है कौन सही है कौन गलत है। स्टेटमेंट 1, द परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इज असेस्ड यूजिंग इंश्योरेंस डेंसिटी एज एन इंडिकेटर, जो परफॉर्मेंस और पोटेंशियल है इंश्योरेंस सेक्टर को उसको असेस किया जाता है यूजिंग इंश्योरेंस डेंसिटी एज एन इंडिकेटर, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 2, द परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इज असेस्ड यूजिंग इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एज एन इंडिकेटर, क्या इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को भी इस्तेमाल करते हैं, हाँ बिल्कुल सही, तो दोनों ऑप्शन सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फिर से स्टेटमेंट क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, according to IT rules 2021, social media platforms with minimum 50 lakh registered users are classified as significant social media intermediaries, क्या IT रूल्स 2021 के हिसाब से तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें 50 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, क्या उन्हें सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज कहा जाता है, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 2, OTT प्लेटफॉर्म्स कैन नॉट अपलोड कंटेंट विच इज एडल्ट एंड एक्सप्लिसिट इन नेचर, गलत है, ऐसा भी तो लॉज आया नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following thinkers is attributed with the following statement, so long as the millions live in hunger and ignorance, I hold every man a traitor, who having been educated at their expense pays not the least heed to them, ये किसने कहा था, बी स्वामी विवेकानंद ने कहा था। नेक्स्ट,
Who was chosen as the first सत्याग्रही to launch the individual सत्याग्रह in 1940? किसे पहला सत्याग्रही माना जाता है जिसने इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में लॉन्च किया था? वो थे आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following is a structural biologist who shared the 2009 Nobel Prize in Chemistry for studies on the structure and function of ribosome and is a Padma Vibhushan awardee? Is option B, Venkatraman Ramakrishnan. In November 2020, Union Cabinet gave its nod to merge which two banks? कौन से दो बैंक को मर्ज करने के लिए 2020 में पास हुआ था? तो ऑप्शन सी, लक्ष्मी विलास बैंक विथ DBS बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1, नीलगिरी हिल्स कनेक्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। क्या नीलगिरी हिल्स ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स को कनेक्ट करता है? बिल्कुल सही करता है। स्टेटमेंट 2, सतपुरा हिल्स कनेक्ट ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न घाट। गलत है, ऐसा नॉर्थर्न घाट कुछ ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो कैसे कनेक्ट करेगा? स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स आर पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम? कौन कौन पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का पार्ट है? तो हमें पता है नर्मदा एंड तापी है, तो सिर्फ नर्मदा एंड तापी हो तो सी एन ई होगा, बाकी सब तो बेटवा, बीस, गंडक, ये सब तो नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ द एक्चुअल कोरोना वायरस वेरिएंट? अल्फा वेरिएंट हाँ, बीटा वेरिएंट हाँ, गामा वेरिएंट बिल्कुल सही, डेल्टा वेरिएंट हाँ, कापा वेरिएंट बिल्कुल सही है। चारों पांचों के पांचों थे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। हु कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स नॉर्मल टर्म ऑफ 5 years? 5 साल से पहले लोकसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकते हैं, लेकिन अपने मन से कर सकते हैं क्या? नहीं, प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी। Which of the following Bengali works of fiction is often considered as the first political novel in India? पहला पॉलिटिकल नोवेल आनंद मठ को कहा जाता है। Which of the following is true regarding history of Buddhism in India? ओके, हमें हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म से रिलेटेड बताना है। ओके, पहला, द टर्किस्ट किल्ड लार्ज नंबर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क इन बिहार, बिल्कुल सही। द ब्राह्मण छत पुष्यमित्र शुंगा परसिक्यूटेड द बुद्धिस्ट, सही है। द हुना किंग्स मिहिर कुल किल्ड 100 ऑफ बुद्धिस्ट, क्या मिहिर कुल ने 100 ऑफ बुद्धिस्ट को मारा था? बिल्कुल सही है। द शेवाइट शशंका ऑफ गौड़ा फेल्ड द बॉडी ट्री एट बोध गया, उन्होंने क्या बॉडी ट्री को गिरा दिया था बोध गया पे? बिल्कुल सही। When Sang stated that 1600 stupas and monasteries were destroyed and thousands of monks killed, ये भी सही है, तो सारे के सारे सही हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू रिगार्डिंग द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया? जुडिशियल सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है। देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 20 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। गलत है, हमारे यहाँ 34 जजेस हैं, जिसमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। क्या गलत है पता चल गया? दूसरा, बी, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ 65 years, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, अमॉन्ग द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया द हाइएस्ट नंबर ऑफ केसेज आर पेंडिंग एट इलाहाबाद हाई कोर्ट एज ऑन March 2022। 2022 मार्च के हिसाब सबसे ज़्यादा कोर्ट पेंडिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट में, बिल्कुल सही। अमॉन्ग द हाई कोर्ट द लीस्ट नंबर ऑफ केसेज आर एट कर्नाटका हाई कोर्ट, गलत। सबसे लीस्ट नंबर ऑफ जो केसेज है वो है सिक्किम हाई कोर्ट पे। ई, देयर आर 29 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, क्या हमारे यहाँ 29 हाई कोर्ट्स है? नहीं, 25 हाई कोर्ट्स हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। रिकॉल कर लें, कितने जजेस होते हैं? 34 जजेस, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 33 हाई कोर्ट जजेस। जजेस सुप्रीम कोर्ट के 65 साल पर रिटायर करते हैं। सबसे ज़्यादा केसेस इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सही है। और सबसे कम केसेस क्या कर्नाटका हाई कोर्ट में? नहीं, सबसे कम केसेस सिक्किम हाई कोर्ट में। और कितने हाई कोर्ट है हमारे इंडिया में? 25 हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following sport person was appointed as the vice chancellor of Delhi Sports University in June 2021? वो कौन थे? सी, कमम मलेश्वरी थे। सी, कमम मलेश्वरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, द ब्रांच ऑफ साइंस विच शोज इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड जेनेटिक्स, गलत है, इकोलॉजी कहते हैं। वो ब्रांच ऑफ साइंस जो हमें रिश्ता बताता है किसके बीच में? लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के बीच में। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के बीच में जो रिश्ता बताता है उसे इकोलॉजी कहते हैं। द टेक्निक्स, स्टेटमेंट 2, द टेक्निक्स ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग 3D इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज लेक्सिकोग्राफी, गलत, होलोग्राफी कहते हैं। तो 3D इमेजेस और ऑब्जेक्ट को बताते हैं उसे होलोग्राफी कहते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPCG? EPCG का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स।
द प्राइमरी फोकस ऑफ स्माइल लोन ऑफ सिडबी इज टू, स्माइल लोन जो था सिडबी का, उसका प्राइमरी फोकस क्या था? तो उसका प्राइमरी फोकस था टू मीट द डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ अ यूनिट और टू हेल्प इन इट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में मदद करना। एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है? वो होता है जो अंडरटेक करता है, ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर इज हु इज द ओनर ऑफ मोर देन वन बिजनेस इज कॉल्ड, एक एंटरप्रेन्योर जो एक से अधिक बिजनेस का मालिक है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार्टअप loans offered by Mudra banks to small enterprises business which are non-corporate and non-farm small or micro enterprises is up to the limit of rupees 10 lakh. The startup loans offered by Mudra banks to small enterprises business which are non-corporate and non-farm small or micro enterprises is to up to limit of rupees 10 lakh. तो कितना मुद्रा लोन के तहत हमें लोन मिल सकता है? 10 लाख तक का। Which are the BRIC countries? नाम में छुपा हुआ है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। 87. Entrepreneurship can be best described as option D, a process involving innovation and value creation. तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? कि जिसमें इनोवेशन और वैल्यू क्रिएशन हो। अ पर्सन हु इम्प्रूव्स एन एग्जिस्टिंग बिजनेस इज कॉल्ड एन इंट्राप्रेन्योर। एक जो बिजनेस चल रहा है उसको और बेटर बना दिया उसको क्या कहते हैं? इंट्राप्रेन्योर कहते हैं। द लीगल टर्म फॉर ब्रांड इज ट्रेडमार्क। Which of these theories involves taking a moderate amount of risk as a function of skill and not chance? Since कौन से theories involve करते हैं कि moderate amount of risk लेते हैं as a function of skill ना कि chance? तो वो है A, need for achievement. 91. For a project to be viable for a project to be viable the first necessary condition क्या है? अगर एक प्रोजेक्ट को वाइबल होना है तो पहला नेसेसरी कंडीशन क्या है? दैट इट शुड हैव अ मार्केट, उसके पास एक मार्केट होना चाहिए। As business grows, time management continues to be an issue, but the entrepreneur's major concern usually becomes B, finding, retaining and motivating qualified employees. जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है, as business grows, time management continue to be an issue, but the entrepreneur's major concern usually become finding, retaining and motivating qualified employees. Option B is the right answer. Next, dash entrepreneurs suffer losses as they refuse to make any modification in the existing production method. Drone entrepreneurs suffer loss करते हैं as they refuse to make any modification in the existing production method. Which of the following is not a legitimate way of bringing new business idea to market? Business plan. इसमें से कौन legitimate तरीका नहीं है bring करने के लिए एक new business idea to market? वो है business plan. The business plan of a venture must show consistent but manageable projected growth because A, many entrepreneurs fails after expanding too rapidly. बहुत सारे entrepreneur fail कर जाते हैं जब वो expand कर लेते हैं बहुत ज़्यादा. Entrepreneurs have to deal with both external and internal uncertainties. Entrepreneurs को deal करना है दोनों external और internal uncertainties. Option C. In context of market feasibility analysis, the analyst should consider the following factor as a priority. किसे करना चाहिए? Option A, target market attractiveness को देखना चाहिए. Target market attractiveness. Next question 98. According to Gary Hamel, which one of the following propositions is one of the 4 pillars to create value for the company and the customer? कौन है वो? Option B, the management innovation. Which type of innovation seeks to make a better product to target the high end of the market? किस तरह का innovation seek करता है make करेंगे better product to target the high end of the market? Option is sustaining innovation. कौन सा innovation? Sustaining innovation. And question number 100. Which of the following statement is or are true? कौन सा statement सही है? Okay, let's read. Technical feasibility is not required in case of hospital project. गलत. Pattern of financing is ignored while computing cost of capital. गलत. CPM is superior to PERT in some situations. सही है. Infrastructure projects are ideally financed through long-term sources. सही है. Cost of internally generated fund is 0. Wrong. This is option D. तो हमने कर लिया है up to 100. Now it's time to move from question number 1 to 40. यहाँ से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे. मैथ्स के तो क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट मैथ्स. क्वेश्चन 1. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 1. अ सेविंग अकाउंट एट बैंक A pays 6.2% interest compounded annually. Bank B saving account pays 6% compounded semi-annually. Bank B is paying less total interest each year.
कह रहा है कि एक सेविंग अकाउंट है वो 6.2% ब्याज देता है सालाना कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। और एक बैंक बी है वो 6% देता है सेमी एनुअली। तो क्या बैंक बी जो है वो क्या कम ब्याज दे रहा है हर साल? लेट्स चेक। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला। अगर इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना परेशान हो जाओगे। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या है? 1+r/n/n-1। 1+r/n का पावर n-1, 1+r/n का पावर n-1, ये है इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, तो पहले ए का निकालते हैं। तो 1+r की जगह 6.2 रखो। 6.2 मतलब क्या? परसेंट है ना, तो ये हो जाएगा 0.06/2 का पावर n। यहाँ सेमी एनुअली दे रहा है, तो सेमी एनुअली के लिए तुम कर दो, सॉरी पहले हम बी का निकाल रहे, पहले हम बी का निकाल देते हैं, ठीक है। तो 1+6% का मतलब क्या होता है? 6% का 0.06 का डिवाइड बाई 2, इसका स्क्वायर -1। तो इसको सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा 1.03 का स्क्वायर -1, तो ये आ गया 2. ये सॉल्व करने पा रहा है हमारा 6.09%। तो बैंक बी का इफेक्टिव रेट आ रहा है सेमी एनुअली के लिए 6.09%, और बैंक ए का कितना रहा है? 6.2%। तो बैंक बी क्या कम ब्याज दे रहा है? हाँ बिल्कुल दे रहा है। देखो, जब सेमी एनुअली हो जाता है तो उसके लिए इफेक्टिव रेट निकालने के लिए तो फॉर्मूला होता है 1+r/n का पावर n-1, ठीक है। तो हमने बैंक बी का इफेक्टिव रेट निकाल दिया सेमी एनुअली को एनुअली कन्वर्ट करके। तो ये 6.09 दे रहा है और वो 6.2 दे रहा है, तो कौन ज़्यादा दे रहा है? ए ज़्यादा दे रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 पढ़ो। अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इन 3 ईयर्स। पी जो है वो 2p हो जाता है, पी जो है वो 2p हो जाता है 3 साल में। 9 साल में पी कितने टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल पी के? क्या 9 टाइम्स हो जाएगा? लेट्स चेक। इसमें फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/n का पावर t। इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। तो p जो है वो 2p हो जाता है, ठीक है। तो 2p इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/n होगा, सॉरी n यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद कर लो। इसका फॉर्मूला ये सेकंड का पता करने के लिए ये फॉर्मूला है, सेकंड का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/n का पावर t, n 1 होगा, ठीक है। क्योंकि ये कंपाउंडेड एनुअली है तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि a इज इक्वल टू पी इंटू 1+r का पावर t। तो कह रहा है एक सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट पे डबल हो जाता है 3 साल में। तो p 2p हो गया, तो 2p इज इक्वल टू, तो 9 साल में कितना हो जाएगा? तो 2p इज इक्वल टू डबल हो जाता है, तो 2p इज इक्वल टू पी इंटू 1+r वैल्यू पुट करो, और यहाँ 3 साल में हो जाता है तो यहाँ पे 3 पुट करो, सॉल्व करो। तो 1+r 2 का पावर 1/3, तो r ये 1+r का वैल्यू आ गया। अब 9 ईयर के लिए निकालो, ये हमने 3 ईयर्स के लिए निकाला, अब 9 ईयर्स के लिए निकालेंगे। तो p इंटू 1+r का पावर 9, और यहाँ पे 1+r का वैल्यू है 2 का पावर 1/3, तो ये आ गया 8। तो 9 यहाँ पर दिया, p इज इक्वल टू 9, तो 9 नहीं होगा 8 टाइम्स हो जाएगा। इस हिसाब से स्टेटमेंट 2 गलत है। तो ये दोनों, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों स्टेटमेंट तभी वेरीफाइड होगा जब आपको फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला क्या? अगर इंटरेस्ट सेमी एनुअली और आपको एक इफेक्टिव रेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1+r/n का पावर n-1, ठीक है। और फिर आपको ये चेक करना है कि डबल हो रहा है तो p कितने टाइम्स होगा, उसका फॉर्मूला है a इज इक्वल टू पी इंटू 1+r का पावर t। इससे फॉर्मूला से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर दैट शोज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू mod 2x+4 फॉर ऑल नंबर ऑफ x। अब क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन g डिफाइंड फॉर ऑल नंबर x डज द ग्राफ ऑफ g इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ f। तो इसके लिए देखो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है fx इज इक्वल टू
मॉड 2x+4। तो इसमें एक काम करो, x को ग्रेटर देन 0 रखो और x इक्वल टू 0 रखो। तो x इज इक्वल टू अगर हम इसको वेरीफाई करते हैं 2x+4 इज इक्वल टू x+3, पहले ऑप्शन ए को वेरीफाई करते हैं। इसमें ये कैसे सॉल्व होगा, ये ऑप्शंस को पुट करके चेक करना पड़ेगा। तो पहले हमने रखा, हर सिचुएशन में याद रखना है कि x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 रख के चेक करना है। तो पहला ऑप्शन हमने रखा 2x+4 इज इक्वल टू x+3, तो x इज इक्वल टू -1 आ गया, लेकिन x तो बड़ा होगा 0 से, तो -1 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। जब x लेस देन 0 होगा तब चेक करो। जब x लेस देन 0 होगा, एक बार हमने x ग्रेटर देन 0 पुट के चेक किया, एक बार x लेस देन 0 पुट करके चेक करते हैं। तो जब x लेस देन 0 होगा तो ये मॉड 2x माइनस 2x में चेंज हो जाएगा, +4 इज इक्वल टू x+3। जिसने पढ़ा है चैप्टर उसको समझ में आ जाएगा क्या किया मैंने, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/3 आ गया। तो x जो होगा वो 0 से कम होगा, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव वैल्यू आ गया, तो इस हिसाब से ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। चलो डी चेक करते हैं। ए चेक कर लिया, ए सेटिस्फाई नहीं किया। इसी तरह बी सी चेक करना, हम मैं डी चेक करके बताता हूँ। नाउ डी, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो x ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि 2x+4 होगा। 2x+4 इज इक्वल टू 3x - 2, यहाँ से x इज इक्वल टू 6 है और ये ग्रेटर देन 0 है, तो सेटिस्फाई कर गया। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if selling price of 320 web cameras is equal to the cost price of 400 web cameras, then the percentage profit is। तो सेलिंग प्राइस इंटू 320 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 400, तो SP/CP का रेशियो निकाल दो, 5:4 आ गया। प्रॉफिट निकाल दो, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एक का प्रॉफिट हो जाएगा, खरीदे तो 4 में बेचे 5 में, तो 1/4 25%, ऑप्शन डी सिंपल। ये तो ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, The cost of the three components A, B and C of an electronic machine worth 12,000 in 2020 is given as pie chart as shown below। Okay, ठीक है। In the following, अब क्वेश्चन देखते क्या पूछ रहा है। In the following year, the cost of three components A, B and C increased by 10%, 20% and 10% respectively। ठीक है। The cost of the three components A, B and C respectively क्या होगा। ठीक है, हमें A, B, C का सबका निकालना पड़ेगा। देखो, अगर तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है तो ये सॉल्व हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है, अगर किसी एक पर्टिकुलर से सपोज कर हमको इतना एरिया निकालना है, ये कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला है θ/360 इंटू जो भी वो जितना का πr²। सेम यही वाला यूनिट यूज़ करो। यहाँ पर 90 डिग्री है, हमको ए का निकालना है, ए का हिस्सा कितना पड़ेगा वो निकालना है, तो 90/360 इंटू कॉस्ट टोटल है 12,000, तो ये आ गया 3,000। बी का निकालेंगे इसी तरह, बी कितना है 120, तो 120/360 यानी कि 1/3, 1/3 इंटू 12,000 यानी कि 4,000। ठीक, तो ये 4,000, ये 3,000, 7,000 और ये ऑटोमेटिकली 5,000 निकालने की जरूरत नहीं है। तो ए हो गया 3,000, बी का हिस्सा हो गया 4,000, सी का हिस्सा हो गया 5,000, यानी ए का कॉस्ट है 3,000, बी का 4,000, सी का 5,000 कॉस्ट है। ठीक, अब कह रहा है इन तीनों का इंक्रीज हो गया कॉस्ट, तो इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, तो 3,000 का 10% बढ़ा दो। 3,000 का 10% क्या होता है 300, यानी 3,300। ठीक, फिर सी का देखो, सी का भी 10% बढ़ा दो। 5,000 का 10% कितना था 500, 5,500, तो 3,300, 5,500 ऑप्शन बी में और कहीं नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द 95th टर्म ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज। ठीक है, देखो ए 2 बार लिखा गया है। ठीक है, ध्यान से देखो समझो, ए को 2 बार लिखा गया है। ठीक, बी को 4 बार, सी को 6 बार, डी को 8 बार। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8, ई कितने बार हो जाएगा 10 बार। इसी तरह एफ कितना हो जाएगा 12, जी कितना हो जाएगा 14, एच कितना हो जाएगा 16, आई कितना हो जाएगा 18, जे कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इस तरीके से। तो पूछ रहा है कि 95th टर्म क्या होगा, जोड़ लो सिंपल। देखो 4, 2, 6, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 30, 42 और 42, 52, 56, 56 और 62, 72, 72 और 8, 80, 90 और 90 के बाद 95th टर्म पूछ रहा था, यानी कि जे हो जाएगा। 95th टर्म क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जे हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A certain sum of money earns a simple interest of rupees 800 over 2 period. The same sum of money invested at the same rate of interest and the same period on a compound interest basis earns an interest of rupees 900. What is the sum? कह रहा है एक प्रिंसिपल जो है, एक प्रिंसिपल अमाउंट है जो 800 रुपये ब्याज देता है 2 साल में, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के दर पर, ठीक। वही सेम प्रिंसिपल को सेम रेट पर सेम टाइम के लिए अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे डाल दें तो वो हमको ब्याज देता है 900, 100 एक्स्ट्रा देता है, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन से करो, ऑप्शन से करो वो जल्दी हो जाएगा। तो देखो, चलो हम जैसे मान लेते हैं कि एक हिट एंड ट्रायल, जैसे हम मान लेते हैं कि वो सम था 1200, ठीक, 1200 लेते हैं। तो 1200 लिए तो 1200 पे हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है, 800। तो यानी कि पहला साल 400 मिलेगा, 2 साल का टाइम पीरियड है, और दूसरा साल 400 मिलेगा, ठीक। 4 4 800 मिल गया। और फिर यही 1200 रुपये को कंपाउंड इंटरेस्ट पर डालेंगे तो 400 पहला साल, फिर दूसरा साल 400, और कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज 400 का, और 100 रुपये हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो 400 1200 का कितना परसेंट होता है, ये देखो, 4×3 12 यानी कि 1/3 होता है, 1/3 यानी 33.33%। मतलब निकाल लो, आता है ना निकालने, 400/1200 इंटू 100, ये कर जाएगा 1/3 आ गया, तो 1/3। अब 400 के क्या देखो क्या 400 का 1/3 100 होता है। 400 का जब हम लोग 1/3 करेंगे तो क्या 100 होता है, नहीं होता। तो यानी कि ये 1200 ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मैं अभी सर ऑप्शन बी लेंगे, जैसे 1600 लेंगे तो 1600 का 400 कितना होता है, 25% होता है, ठीक है। अब 1600 का 400 का 25% निकालो। 400 का 25% कितना होता है, 400 का 25% 100 होता है, तो सेटिस्फाई कर गया। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही हो गया। मैं सिंपल, ये ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर x 0 से बड़ा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 3.6% ऑफ 5x/12। ये तो हलवा क्वेश्चन है। 3.6 को लिखो 36/10 इंटू 100 इंटू 5x/12, ये आ गया 3x/200। तो 3x/200 आया, तो देखो क्या 3% ऑफ 20x होगा ना। इसको जब तुम मैच करोगे तो ये हो जाएगा, देखो ऑप्शन बी, देखो इसको तुम खुद से सॉल्व करना, पॉज करके, हलवा क्वेश्चन है। x% ऑफ x% मतलब x/100 ऑफ 3/2, ये कितना बन गया 3x/200। ये देखो यहाँ भी 3x/200, तो ऑप्शन बी सही है, और कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ये तो दिया ही हुआ है डायरेक्टली। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो है डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, Ravi walks from his house at a speed of 5 km/h and reaches the college 10 minutes late. If increase the speed by 1 km/h next day, he reaches the college 4 minutes earlier than the scheduled time. अब the college is p किलोमीटर far from his house, p क्या 7.5 किलोमीटर होगा नहीं, ये बताना है हमें। चलो देखते हैं। तो रवि का स्पीड है 5 km/h, ठीक है। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि रवि का स्पीड जो है वो 5 km/h है, ठीक है, और 10 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वो अपना स्पीड को 1 किलोमीटर से बढ़ा देता है, यानी कि 5 से 6 कर लेता है, तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो अर्ली लेट का क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि कॉलेज से दूरी क्या है, तो इसका फॉर्मूला है d = S1 × S2/S1 - S2 × ΔT। ये फार्मूला से ही बनेगा जल्दी, नहीं तो फिर तो हो जाएगा सत्यानाश। तो d = फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिस्टेंस = S1 × S2/S1 - S2 × ΔT। तो S1 × S2 करो 6×5 = 30, S1 - S2 करो 6 - 5, एक यहाँ डिफरेंस लेना है, बड़ा में से छोटा घटाना है, तो 1 और ΔT। देखो यहाँ पे अर्ली लेट, जब अर्ली लेट होता है तो प्लस 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 हो जाएगा। देखो लेट अर्ली अलग अलग है, प्लस हो जाएगा। अर्ली लेट या लेट अर्ली जो भी वो प्लस होगा, लेट लेट होगा माइनस अर्ली अर्ली माइनस। यहाँ अर्ली लेट जोड़ दो, 10 + 4 14 मिनट। यहाँ पे याद रखना, यहाँ km/h है, यहाँ पे मिनट है, तो सब कुछ सेम यूनिट में करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने 1 घंटा है तो 1 घंटा को 60 मिनट लिख दिया, तो मिनट से मिनट कट गया, और ये काटने के बाद 7 किलोमीटर आंसर आ गया। और यहाँ दिया 7.5, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा पढ़ते हैं, अमित रन
चलो दूसरा पढ़ते, दूसरा को मैंने सोल्यूशन ऊपर किया है, ऊपर देखते हैं। अमित रन 2 1/3 times as fast as Babita. If Amit gives Babita a start of 80 meter, then winning post must be 140 meter far so that Amit and Babita might reach at the same time. चलो पढ़ते हैं। अमित रन करता है, इसको कर लो, कन्वर्ट कर लो, 7/3 times faster as बबीता। अमित जो है वो 7/3 times फास्ट रन करता है बबीता से, तो यानी कि स्पीड बताया जा रहा है। तो अमित बबीता का रेशियो लो 7/3, तो 7:3। तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तो वही सेम रेशियो हो जाएगा। अमित थोड़ा दिलदार आदमी है क्योंकि तेज़ दौड़ता है। उसने क्या किया कि बबीता बोले जाओ जाओ तुम 80 मीटर आगे से दौड़ो, कोई जल्दी नहीं है। तो कह रहा है कि तो जब 80 मीटर का स्टार्ट दिया तो कह रहा है कि क्या विनिंग पोस्ट को 140 मीटर दूर होना चाहिए ताकि अमित और बबीता एक ही टाइम पर पहुंच सके। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है क्या विनिंग पोस्ट को 140 मीटर दूर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। तो डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 - 4, ये 4 यूनिट जो 80 मीटर, क्योंकि 80 मीटर का उसको लीड देता, तो 4 यूनिट इज इक्वल टू 80 मीटर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, तो अमित तो पूरा दौड़ेगा फिनिशिंग पोस्ट तक, तो 60 यूनिट यानी कि 7 दूनी 140 मीटर, तो सही है, इस हिसाब से स्टेटमेंट 2 सही है। तो रेशियो से बन जाएगा ये क्वेश्चन ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट A, B and C be the ages of 3 person, that is P, Q and R respectively, where A less than equal to B less than equal to C are natural numbers. If the average age of P, Q, R is 32 years and if the age of Q is exactly 6 years more than that of P, then what is the minimum possible value of C? कह रहा है P, Q, R 3 व्यक्ति और इनका उम्र है A, B, C रिस्पेक्टिवली, यानी P का उम्र है A, B, Q का उम्र है B और R का उम्र है C, और C बड़ा है, सबसे बड़ा है, फिर B, फिर A, और ये नेचुरल नंबर्स में है। ठीक है, अब P, Q, R का एवरेज एज जो है वो 32 है। ठीक, एंड इफ द एज ऑफ Q इज एग्जैक्टली 6 ईयर मोर देन P, Q का एज जो 6 साल ज़्यादा है P के मुकाबले। ठीक, देन व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ C? C का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? तो देखो पहले ये इसका ये स्टेटमेंट का यूज़ करो। इफ द एवरेज एज ऑफ P, Q, R इज 32 ईयर, तो P प्लस Q प्लस R का एवरेज एज 32 है, तो वो तो उनका एज ABC है, तो चलो ABC लिख लेते हैं। तो P, Q, R, ABC, तो A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा? 32 × 3 कर देंगे क्योंकि एवरेज दिया हो तो 96, तो P और Q और R का जोड़ के एज हो जाएगा 96। ठीक, और कह रहा है कि द एज ऑफ Q इज एग्जैक्टली 6 ईयर्स मोर देन P, तो B इज इक्वल टू A प्लस 6, इससे यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, A, B की जगह A प्लस 6 रख देते हैं, या अभी इसको बाद में यूज़ कर लेंगे। एक काम करते हैं, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए B और C का मान लेते हैं, B और C का एज बराबर है। ठीक है, क्यों मानते हैं बताएंगे कारण आगे, या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो इसको पहले एक शॉर्टकट तरीका सॉल्व कर सकते हैं। A, B, C एवरेज एज 32 32 32 हमने लिख लिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि एज ऑफ Q जो है वो 6 साल ज़्यादा है P से, Q का एज 6 साल ज़्यादा होना चाहिए P से, तो इसका अगर 32 है तो 6 साल कम होना चाहिए इसका, यानी कि 26 होना चाहिए। तो ये 6 हम इसमें दे दिए, 38 हो गया, तो लेकिन ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, केस 1 ये हो गया, लेकिन हमको क्यों नहीं सेटिस्फाई कर रहा है? क्योंकि हमको मिनिमम पॉसिबल वैल्यू लेना है C का, R का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू लेना है। तो 38 क्या मिनिमम है? ऑप्शन में 38 दिया हुआ है, लेकिन 38 मिनिमम नहीं है, तो इसको हमको मिनिमम लेने के लिए काम करते हैं कि B और C का एज बराबर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C, यानी A प्लस 2B 96। अब B के जगह A प्लस 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर पुट कर दो 2A प्लस 12, यहाँ पे A इज इक्वल टू 28 आ जाएगा। तो अगर हम A का एज 28 लेंगे तो B का एज 34 हो जाएगा, C का 34 हो जाएगा, और यहाँ पे कहा भी हुआ A लेस देन इक्वल टू B लेस देन इक्वल टू C,
इस हिसाब से जो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। A number of distinct 8-letter words are possible using the letter of the word syllabus. If a word in the chosen random, then the probability that the word contains 2 s letter is 1/4. चलो चेक करते हैं क्या रहा है। A number of distinct 8 letters are possible using the letters of the word syllabus. ये देखो syllabus ये वर्ड है, तो इसमें देखो एस जो है वो 2 बार है, एल भी 2 बार है, एस 2 बार है, एल 2 बार है, ठीक है। टोटल कितने हैं, टोटल काउंट करो, 3 3 6 3 3 6 7 8, टोटल है 8, ठीक। तो पूछ रहा था प्रोबेबिलिटी दैट द वर्ड कंटेन्स 2 एस टुगेदर, 2 एस एक साथ आएंगे, तो टोटल है 8, तो 2 एस एक साथ आएंगे तो ये एक सिंगल यूनिट बन जाएगा। अगर हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ा है तो इजीली समझ सकते हैं। तो ये एक यूनिट बन जाएगा, तो टोटल था 8, अब ये हो जाएगा 7, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन, और ये 2 रिपीट कर रहे हैं, एस एस आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं या नहीं, ये तो एक सिंगल यूनिट बन गया, ये एल, ये 2 एल 2 बार है, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी पूछा, तो टोटल कितने, 8 फैक्टोरियल। ओके, लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। तो सबसे पहले हमें टोटल निकालना पड़ेगा। पहले जब तक कि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, तो टोटल 8 वर्ड्स हैं, ठीक है, 8 फैक्टोरियल, 2 बार एस रिपीट कर रहा है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और 2 बार एल रिपीट कर रहा है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 4, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4, ये क्या हो गया, टोटल हो गया, ठीक है। अब हमें स्टेटमेंट 1 को प्रूफ करना है, तो ये हो जाएगा, एक सिंगल यूनिट बन जाएगा तो 7 फैक्टोरियल, और एस 2 बार है तो अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन टोटल। इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास 1/4 आ जाएगा वैल्यू, जो कि बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्ड बिगेन्स एंड एंड विथ एल, एल से शुरू और एल से ख़त्म हो, ठीक है। तो 8 था तो 2 फिक्स हो गया, तो बचा कितना, 6 फैक्टोरियल। ये एल इधर भी आ सकता है, ये एल इधर भी आ सकता है, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन टोटल, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1/28। इस हिसाब से स्टेटमेंट 2 भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the probability of getting a sum of 22 or more when 4 dice are thrown? तो 4 डाइस थ्रोन हुआ, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हुआ, 6 टू द पावर 4, 6 टू द पावर 4 मतलब 36 इंटू 36 इज इक्वल टू 1296। तो पूछ रहा है कि सम ऑफ 22 और मोर, 22 या 22 से ज़्यादा, ठीक है। तो अगर मान लो कि अगर एक डाइस है 22 आना चाहिए, तो 22 कैसे आएगा, 6 6 6 6, तो 24 आ गया, हमें 22 तक जाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 24 आने की संभावना कितनी है। 24 आने की संभावना 1 है कि सब में 6 6 6 आ जाए, ठीक। 23 आने की संभावना क्या है, 23 आने की संभावना के लिए 6 6 6 मेरा 18 5 23, और भी तो हो सकता है, ये 5 यहाँ भी हो सकता है, ये 5, इसके लिए अब हमें यूज़ करना पड़ेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो टोटल वर्ड्स कितने, 4 फैक्टोरियल, सेम कितने, 3 फैक्टोरियल, यानी कि 4 इंटू 3 तो कट जाएगा 2, 4 3 4 वेज, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, और कट जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 वेज। तो 23 आने के 4 संभावना, इस तरह 22 आने के कितने संभावना है, 22 कैसे आएगा, 6 6 6 4, और 6 6 5 5 करके आ सकता है, 22 6 6 6 4 करके, या 6 6 5 5 करके आ सकता है। तो ये इस तरीके से सेम ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये 4 वेज और ये 6 वेज, ठीक है। और अब जोड़ दो सबको, कितने हुए, 6 4 10 14 15/1296, यानी कि 5/432। इस हिसाब से ऑप्शन इज द राइट आंसर। A train running at 18 km/h crosses a mark on the platform in 9 seconds and takes 25 seconds to cross the platform. If P is the length of the train and Q is the length of the platform in meter, then PQ क्या होगा, क्या रहा है। एक ट्रेन है, उसकी स्पीड दी हुई है 18 km/h, ठीक।
9 सेकेंड में वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेता है, यानी कि ट्रेन का लेंथ हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा, 18 इंटू मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 इंटू 9 कर देंगे तो आ जाएगा 45 मीटर लेंथ ऑफ द ट्रेन आ गया। ठीक है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस होने में ये टाइम लेता है 25 सेकेंड। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन अब हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस मतलब यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म ले लो, तो 45 मीटर लेंथ ऑफ द ट्रेन, प्लेटफॉर्म का लेंथ p मान लेते हैं, और स्पीड ऑफ ट्रेन 18 इंटू 5/18, टाइम 25। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म का लेंथ आ गया 125, p इज इक्वल टू माइनस करके 80 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, देन पी क्यू, तो p है हमारा p कॉमा q क्या होगा, तो हमारा q इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म हो गया, p इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अच्छा, लेंथ ऑफ द ट्रेन ही p है, हमने गलत लिया यहाँ पे, q इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे q ले लो, p इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन और यहाँ पे p ले लो, तो p आ गया हमारा 45, q आ गया 80, तो 45/80 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 pipes p, q and r can fill a tank in 6 hours. After working at it together for 2 hours, R is closed and both P and Q can fill the remaining part in 7 hours. The number of hours that will be taken by R alone to fill the tank is, कह रहा है कि P Q R जो है वो एक टैंक को 6 घंटा में भर सकते हो। तो इसका मतलब तुम ऐसा लिख सकते हो 1/P + 1/Q + 1/R इज इक्वल टू 1/6। आफ्टर वर्किंग एट इट फॉर 2 आवर्स, 2 घंटा काम करने के बाद, तो टोटल है 1/6 1 घंटा का पर आवर, तो 2 घंटा का क्या हो जाएगा 2/6, यानी कि 1/3 यूनिट पर आवर, 1/3 यूनिट पर आवर। R is closed and both P and Q can fill the remaining part in 7 hours. R को बंद कर दिया गया, P और Q कितने देर में भर सकते हैं 1/7, तो 1/7 इंटू 2/3, 2 घंटा के बाद 1/3 काम हो जाएगा, तो बचा हुआ काम कितना होगा 2/3, तो 2/3 काम मिलके 1/P और 1/Q करते हैं, यानी कि इंटू 1/7 करते हैं, 2/21 आ गया। ठीक है, अगर R को अकेले ये फिल करना है इतना बचा हुआ हिस्सा को, तो कितना टाइम लगेगा, 2/21 + 1/R इज इक्वल टू 1/6। यहाँ पे पुट कर दो, 1/P + 1/Q आ गया हमारे पास 2/21, 1/R इज इक्वल टू 1/6, सॉल्व करेंगे R इज इक्वल टू 14 आ जाएगा, ख़त्म। सिंपल क्वेश्चन। तो पहले ये स्टेटमेंट से नहीं निकाला, 2 घंटा पे काम कर लिया, तो यानी कि 1/3 काम हो गया, तो बचा कितना 2/3, तो P and Q कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 7 आवर्स, तो 7 आवर्स में कर सकते हो। तो इसको कैसे निकालोगे 2/21, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे और यहाँ सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा एरिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो कि एक सर्कल जिस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक सर्कल है जिसका रेडियस है r। एरिया पूछ रहा है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4a²। ठीक है, तो √3/4a², तो हमें अब a का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये a साइड, ये साइड a, और ये हो गया r। इस r को कहते हैं सर्कम रेडियस, क्या कहते हैं सर्कम रेडियस। और अगर तुमने ज्योमेट्री ठीक से पढ़ा है और फॉर्मूला याद है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में r का वैल्यू होता है R इज इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू a/2√3। ये फार्मूला होता है, अगर पढ़ा होगा तो याद होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ये फार्मूला याद है तो नहीं बनेगा, मुश्किल होगा बहुत बनाने में, और याद है तो तुरंत बन जाएगा। तो कैपिटल R इज इक्वल टू a/2√3, कैपिटल R इज इक्वल टू a/2√3, तो स्मॉल a इज इक्वल टू 2√3r, पुट कर दो एक जगह 2√3, तो 4√3r², तो 3√3r², ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल इंटीजर्स एन फॉर विच n² + 96 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, कौन सा होगा। हमें इसे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है,
यहाँ 96 है, 96 में क्या जोड़ेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, पहले सोचो। अगर 96 में हम 1 जोड़ेंगे या 0 जोड़ेंगे तो नहीं बात बनेगी, अगर 4 जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे तो 100 बन जाएगा। अगर हम n को 2 रख दे तो 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 96 प्लस 2 का स्क्वायर, 96 प्लस 2 का स्क्वायर, ये सेटिस्फाई कर जाएगा क्या? अगर हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 96 प्लस 9 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? नहीं। अगर हम 5 रखें तो 5 रख के चेक करते हैं, ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। 25, 96 प्लस 25 121, 121 सेटिस्फाई कर जाएगा। क्या 12 सेटिस्फाई करेगा? नहीं। क्या 13 करेगा? नहीं। 10 कर जाएगा, 96 196 बन जाएगा। 196 14 का होता है तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। और फाइनली सेटिस्फाई करेगा 25 का स्क्वायर 625, तो 625 प्लस 96 कर दो तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। चेक कर लो, 625 में से 95 29 बन जाएगा तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो मुझे यहाँ पे 4 है तो 8 कैसे आंसर हो जाएगा? तो आंसर ऐसे हो जाएगा इसका निगेटिव वैल्यू भी तो सेटिस्फाई कर जाएगा। इंटीजर्स मतलब क्या होता है? प्लस और माइनस दोनों को मिला के इंटीजर्स कहते हैं ना। तो +2 सेटिस्फाई करेगा तो -2 भी सेटिस्फाई कर जाएगा, +5 तो -5 भी। तो 4 वैल्यू ये और इसका 4 निगेटिव वाला, तो आंसर ये हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल्स होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 16, स्टेटमेंट 1। Statement 1. The number of ways to pack 6 copies of the same book into 4 identical boxes where a box can contain as much as 6 boxes is 9. क्या ये सही है? Let's check. कह रहा है कि the number of ways to pack 6 copies, कि 6 कॉपीज़ को पैक करने के लिए सेम बुक 4 आइडेंटिकल बॉक्सेस में, चाहे हर बॉक्स कंटेन करता है एज मैनी 6 बुक्स, क्या वो 9 होगा? चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ ये रहा क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है एक पार्टीशनिंग द नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि 6 को एटमोस्ट 4 पार्ट्स में डालना है। बॉक्सेस आइडेंटिकल है तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। कैसे डालेंगे पार्टीशनिंग द नंबर? वेल क्वेश्चन समझ लो। कह रहा है क्वेश्चन, कितने नंबर ऑफ तरीके हो सकते हैं टू पैक 6 कॉपीज़, 6 कॉपीज़ को पैक करने के लिए ऑफ द सेम बुक 4 आइडेंटिकल बॉक्सेस में पैक करना है और हर बॉक्स में 6 बुक होना चाहिए। तो ठीक है, पहला तरीका ये है कि पहला बॉक्स में 6 बुक डाल दिए, दूसरा 5 + 1 डाल दिए, 4 + 2, 4 + 1 + 1, 3 + 3, 3 + 2 + 1, 3 + 1 + 1, 2 + 2 + 2, 2 + 2 1 + 1, ऐसे डाल सकते हो। टोटल 9 तरीके हो गए। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? 9। ये टफ क्वेश्चन है, मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ, तो आप लोग अपने से कर सकते हैं, मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया। स्टेटमेंट 2, द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट नीडेड इन अ क्लास टू गारंटी देयर आर एटलीस्ट 6 स्टूडेंट्स हुज बर्थडे फॉल इन द सेम मंथ इज 61। ये पहले भी समझाया था इस तरह क्वेश्चन। ये बनेगा तुम्हारा पिजन होल मेथड कॉन्सेप्ट से। देखो यार बहुत सिंपल है, एटलीस्ट 6 स्टूडेंट इन द सेम मंथ। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ठीक, यहाँ एटलीस्ट 6 दिया तो 6 से एक कम ले लो, 5, 12 × 5 = 60, और एटलीस्ट 6 से तो 5 लिया तो तुमने, तो एक कम लिया था तो यहाँ पे +1 कर दो, 61 आंसर हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, द रेशियो ऑफ सन्स एज टू फादर एज इज 1:5। ठीक है, ये देखो सन्स एज फादर एज 1:5, x मान लिया, x एंड 5x। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 245। इनका प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस यानी कि 5x² 245x = 7। तो यहाँ से हमारे पास इनका एज निकल गया 7:35। ठीक है,
कह रहा है कि द रेशियो ऑफ सन्स एज टू द फादर एज आफ्टर 9 ईयर विल बी 3:5। 9 जोड़ दिया 16:44, 16:4/11 हो रहा है, ना कि 3/5, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, अ मिल्कमैन, इसका सोल्यूशन हमने ऊपर किया, चलो देखते हैं। अ मिल्कमैन एट 30 लीटर ऑफ वाटर टू 70 लीटर मिल्क। 100 लीटर दूध था, सॉरी 100 लीटर मिक्सचर है, इसमें से 70 लीटर दूध है, 30 लीटर पानी डाल दिया, पानी फेंट के बेचता है। 1/5 ऑफ द टोटल क्वांटिटी को बेच दिया, यानी कि 1/5 मतलब 20 लीटर, 20 लीटर को बेच दिया, ठीक। अगर तुम जैसे मान के चलो मिल्क और वाटर रेशियो में 7:3, तो 20 लीटर निकाल लोगे तो भी तो रेशियो 7:3 ही बचेगा ना। जैसे सपोज करो कि एक बोतल शरबत है, ठीक है, तो शरबत का एक बोतल शरबत है, ठीक है। अब तुम उसमें से आधा बोतल या कुछ शरबत पी के जो बचा हुआ शरबत है, क्या उसका टेस्ट अलग हो जाएगा कि सेम रहेगा? टेस्ट तो हमेशा सेम ही रहेगा, यानी कि जो शरबत में चीनी और पानी का जो रेशियो है वो तो तुम निकालने के बाद भी बराबर रहेगा, और निकाल के दूसरा कंटेनर में रखोगे उसमें भी बराबर होगा। तो हर सिचुएशन में रेशियो बराबर होगा। तो 20 लीटर निकाल लेने के बाद भी तो रेशियो मिल्क और वाटर का 7:3 रहेगा, ठीक है। तो 20 लीटर बेचने के बाद क्या करता है, एड्स वाटर इक्वल टू द क्वांटिटी सोल्ड। अभी इसको शांति नहीं मिलता मन को, इसने क्या किया कि 20 लीटर निकाल लिया और 20 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है। तो 7:3 था रेशियो, इसमें क्या किया कि 20 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है। मान लो कि 7:3 था, ठीक है, 20 लीटर निकाल लेते हैं। तो ये जो 20 लीटर निकलेगा ये भी तो 7:3 रेशियो में निकलेगा, यानी कि 14 लीटर मिल्क निकल जाएगा और 6 लीटर निकल जाएगा ये तुम्हारा वाटर निकल जाएगा। 30 लीटर था तो 30 में से 24 लीटर बचा पानी और 56 लीटर बचा दूध। अब इस 24 लीटर में ये बदमाशी क्या है, 20 लीटर और पानी मिला दिया, यानी कि मिल्क है 56 लीटर और वाटर हो गया 44 लीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आगे, द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क हिज सेल्स नाउ वुड बी 28:22। क्या ये 28:20 होगा? नहीं, ये तो हमने किया, तो ये आ गया तुम्हारा 28:72, मतलब 7:18। क्या 7:18? नहीं, 14:11 है, तो ये तो गड़बड़ हो गया, तो ये भी गलत है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काम करो, इंटरचेंज कर दो। क्वेश्चन कह रहा है x - 1/x इज इक्वल टू y, y - 1/y इज इक्वल टू z, z - 1/z इज इक्वल टू x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ट्रू है? कौन सा सही है? पहले क्या करो, इंटरचेंज करो, x - y इज इक्वल टू 1/x, y - z इज इक्वल टू 1/y, z - x इज इक्वल टू 1/z। अभी क्या करो, तीनों को जोड़ दो। तीनों को जब तुम जोड़ोगे, x ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा 1 + x + 1 + y + 1/z इज इक्वल टू 0। तो पहला ए सेटिस्फाई कर गया। अब एक काम करो, अब दूसरा चेक करते हैं। अब एक काम करो, ये जो दिया हुआ है x - 1/x का स्क्वायर कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, x² + 1y² इज इक्वल टू y² + 2, क्योंकि ये -2 दे जाएगा +2 हो जाएगा। इसी तरह y² + 1y² z² + 2 और z² + 1y² इज इक्वल टू x² + 2, ठीक है। अब इस सबको जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 1/x² + 1/y² + 1/z² इज इक्वल टू 2 4 6, कितना हो जाएगा, 2 4 6 आएगा, और यहाँ 8 दिया था, ये तो गलत हो गया। आखिरी पढ़ो, ये आ गया 6। तो जैसे ही ऑप्शन बी गलत हुआ, बी काट दो यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह बी इसमें भी और बी इसमें भी, तो एलिमिनेशन से तुम्हारा आ जाएगा आंसर, सी को निकालने का ज़रूरत नहीं, सी को निकालने का ज़रूरत नहीं है, एलिमिनेशन से आ जाएगा। तो अब बढ़ते हैं ऑप्शन 19, क्वेश्चन 19 सॉरी।
ये लॉ का क्वेश्चन है, लॉग अभी आता नहीं एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, बहुत ही मुश्किल है। इसका आंसर बाय द वे से 2 है। जिसको आता है लॉग चैप्टर तो वो कर ले, हमें तो नहीं आता। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है 59 51, इसमें पहले डिफरेंस देखो। 59 में से 51 माइनस करो 8, 37 में से 29 8, 87 में से 79, सब में डिफरेंस सेम। तो जब भी डिफरेंस सेम हो और रूट हो और माइनस का साइन हो, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट लगता है कि छोटा नंबर बड़ा वैल्यू, छोटा नंबर बड़ा वैल्यू, छोटा नंबर बड़ा वैल्यू। यानी कि इन चारों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? इन चारों में से सबसे छोटा नंबर है, पूछ कर इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी छोटा से बड़ा। तो छोटा नंबर बड़ा वैल्यू, तो बड़ा नंबर छोटा वैल्यू। तो बड़ा नंबर सबसे बड़ा कौन है? 87। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन देगा? सी। फिर उसके बाद कौन सा है? डी, फिर ए, फिर बी। सिंपल, ये कॉन्सेप्ट से तुम्हारा हो जाएगा छोटा नंबर बड़ा वैल्यू, बड़ा नंबर छोटा वैल्यू। अब आ जाते हैं हम लोग रीजनिंग में क्विकली। देखो सी, फिर आई काफ़ी लंबा है, फिर एस और लंबा है, फिर एफ, फिर यू, कुछ फ़ायदा मिल नहीं रहा है। फिर से चलो देखो पूछ क्या रहा है, आइडेंटिफाई द ऑड ग्रुप ऑफ द लेटर्स। इसमें से ऑड वन आउट कौन है, वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ई, के, एफ, एच, डब्ल्यू। तो कैसे दिमाग लगाए कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? सोचो सोचो, चलो सोचते हैं। सोचो, लॉजिक मिल गया। देखो सी ई, सी एक छोड़ के ई है, ठीक है। आई के, आई एक छोड़ के के, एस वी को छोड़ो, एस वी को छोड़ो, देखो एस वी, एस वी दो छोड़ा हुआ है। एफ एच, एफ एच में एक छोड़ा हुआ है। यू डब्ल्यू, यू डब्ल्यू में एक छोड़ा हुआ है। तो एस वी में दो छोड़ा हुआ, तो बाकी सब में एक छोड़ा हुआ, इसमें दो छोड़ा हुआ, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द पेयर विच हैज़ द सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप लाइक बैरोमीटर प्रेशर। प्रेशर को नापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह टेम्परेचर को नापने के लिए हम लोग थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्टेटमेंट। 3 आर्गूमेंट दिया हुआ, पूछ रहा कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया, ये आर्गूमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट है और 2 आर्गूमेंट दिया हुआ है। पूछ रहा है कि कौन सा आर्गूमेंट स्ट्रांग है कौन सा वीक है, या दोनों स्ट्रांग या दोनों वीक। स्टेटमेंट है, वुमेन शुड बी अलाउड टू गो आउट एलोन। औरतों को अकेले बाहर जाना अलाउ करना चाहिए। पहला आर्गूमेंट कह रहा है यस इट वुड मेक देम इंडिपेंडेंट एंड सेफ। क्या इन्हें इंडिपेंडेंट, बाहर जाने से कोई इंडिपेंडेंट कैसे बन सकता है? इंडिपेंडेंट तो पैसे कमाने से बनता है, और सेफ, अकेले बाहर जा रहे हो तो सेफ्टी का कैसे कह सकते हो कि 100% सेफ है? ये तो गलत है। क्या वुमेन को अलाउ करना चाहिए बाहर जाने के लिए? नहीं। क्यों? दे आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर मेल अफाइंस एंड दे शुड बी विद देम ऑलवेज। हमेशा नहीं। क्यों? लड़की स्ट्रांग भी तो हो सकती है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोनों के दोनों स्टेटमेंट वीक है। फिर से वही सेम क्वेश्चन उसी टाइप का स्टेटमेंट, सम पीपल बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कुछ व्यक्तियों मानते हैं कि ईश्वर जो है वो होते हैं। ठीक है। आर्गुमेंट, नॉट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन। हर चीज़ इस पृथ्वी में इंसानों द्वारा क्रिएट नहीं किया गया है। इसका स्टेटमेंट से क्या संबंध है? कोई संबंध है नहीं, तो इसलिए वीक आर्गुमेंट है। ह्यूमन बींग्स आर इम्परफेक्ट। इंसान जो है वो इम्परफेक्ट है, इसीलिए लोग एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में बिलीव करते हैं, क्योंकि अगर हम परफेक्ट रहते हम ही भगवान रहते तो फिर भगवान को कोई अलग पर्सन तो होता नहीं। तो आर्गुमेंट 2 इज द इम्प्लिसिट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट, इन अ वन डे मैच टोटल रन मेड बाय अ टीम वेयर 200, आउट ऑफ विच 160 रन वेयर मेड बाय द स्पिनर। एक वनडे मैच था। वनडे मैच समझते हो 50 ओवर वाला मैच होता है। मान चलो इंडिया ने 200 बनाया, ठीक। 160 रन वर मेड बाय स्पिनर्स। अब इंडिया में स्पिनर से चहल, स्पिनर्स जो होते हैं जैसे कि चहल है, 200 में से 60 रन तो चहल ही ने बना दिया, और चहल हो गया, और क्या नाम है उसका,
केदार जाधव हो गया और जो भी स्पिनर्स है अपने पास इंडिया टीम में, इन सभी ने 160 बना दिया अकेले, बैट्समैन ने कुछ नहीं बना पाए। आगे पढ़ो। 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर, ये हम कैसे कर सकते हैं, इसका तो कोई जानकारी मिला नहीं है, तो ये इस हिसाब से गलत है। कंक्लूजन 2, द ओपनिंग बैट्समैन वेयर स्पिनर्स, ये भी नहीं कह सकते, हो सकता है कि उस शुरुआत में आउट हो जाए और स्पिनर्स लोग चहल वहल बाद में आके मार दिए, इसलिए चहल को बैटिंग नहीं आता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिषेक, विनीता, मनीषा, हरी, वैशाली एंड गौरव आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, not necessarily in the same order, some of them are facing the center and the remaining are facing away from the center। ठीक है, सबसे पहले बना डालो डायग्राम। ये देखो एक सर्कल बनाओ, कितने लोग हैं, 3 3 6 हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब बुद्धि लगाओ और सॉल्व करते चले जाओ। गौरव सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विनीता, विनीता की इमीडिएट लेफ्ट में गौरव है। ओनली अभिषेक एंड विनीता फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर के अपोजिट फेस में सिर्फ 2 ही लोग हैं, कौन, अभिषेक और विनीता। तो ये रही विनीता अपोजिट फेस की हुई और ये रहा अभिषेक अपोजिट फेस किया हुआ, ठीक है। यहाँ भी अभिषेक हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज। विशाली एंड हरी आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, ये देखो विशाली और हरी आर सिटिंग, कह रहा है कि विशाली एंड हरी आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, विशाली और हरी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हुए हैं, ठीक है। देयर आर 2, जब विशाली और हरी यहाँ हैं तो ये तो यहाँ से हट जाएगा ना। देयर आर 2 पीपल बिटवीन हरी एंड गौरव, हरी और गौरव के बीच में 2 लोग हैं। अभिषेक इज द नेबर ऑफ बोथ मनीषा एंड गौरव, अभिषेक जो है वो नेबर है बोथ मनीषा का भी, अभिषेक इज द नेबर ऑफ बोथ मनीषा एंड गौरव, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है मुझे लग रहा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इफ हरी एंड अभिषेक इंटरचेंज देयर प्लेसेस, अगर हरी और अभिषेक अपनी जगहों को बदल लेते हैं, हैविंग सेम फेसिंग डायरेक्शन, मतलब अभिषेक बाहर फेस करा तो इधर जाके बाहरी हो गया, हरी अंदर था तो इधर जाके भी हरी अंदर ही कर रहा है, ठीक है। देन हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अभिषेक, अभिषेक के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है, तो अभिषेक के इमीडिएट लेफ्ट पे वैशाली बैठी हुई है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे अच्छे क्वेश्चन है रीजनिंग के। A 3x3 matrix is filled with the number from 31 to 39 according to the following rules. 38 is above 39, 38 is above 39 के ऊपर 38 है and to the right of 32, 32 के राइट पर है, ठीक है। 39, 33 is to the right of 37, 37 का राइट पे 33 है and above 39, 39 के ऊपर है, which is to the left of 34, 34 के लेफ्ट पर है कौन, 33, 33, 34 के लेफ्ट में 33, 32 is to the left of 35, 32 जो है वो लेफ्ट है 35 के लेफ्ट में, 35 के लेफ्ट में। 37 इज अबव 36, 37 जो है वो 36 के ऊपर है और 32 के भी ऊपर है। 37 is above 36 and 32, 36 and 32, 31 is above 35, 31 ऊपर है 35 से, ठीक है। Above and below means that they are in the same column, while left and right means the number are in the same row. What is the sum of the numbers in the middle row? ये मिडिल रो हो गया, इसका सम क्या होगा, 36 + 38 + 31 105, ऑप्शन बी, सिंपल। ये कुछ नहीं, प्लेस करना है और सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग। 143 का मतलब क्या होता है, 12 का स्क्वायर -1, 168 का मतलब 30, 13 का स्क्वायर -1, 225 तो 15 का स्क्वायर ही है, तो ऑड वन आउट सी हो गया। स्टेटमेंट
1. There is an increase in the water level of all the water tanks supplying drinking water to the city in the last fortnight. ठीक है. Statement 2. Most of the trains were cancelled due to water logging on the tracks. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि two statements are given below. There may be cause and effect relationship between the two statements. Cause and effect वाला क्वेश्चन है. ठीक है. They may result of the same cause or independent cause. Read the statement and mark the answer. पहला कह रहा है कि वाटर लेवल वाटर टैंक में बढ़ गया है. ठीक है. पिछले 14 दिनों में. फोर्ट टाइम मतलब 14 दिनों में. पिछले 14 दिनों में वाटर लेवल जो है वाटर टैंक में बढ़ गया है. ठीक है. और स्टेटमेंट 2 कह रहा है मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स वर कैंसिल ड्यू टू वाटर लॉगिंग ऑन द ट्रैक्स. अब पानी बढ़ जाने की वजह से पानी भर गया था, इसके लिए ट्रेन कैंसिल कर दी गई. तो ये सारे दोनों क्या हैं, ये इफेक्ट्स हैं कॉमन कॉज के. तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ द सेम कॉमन कॉज. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ZA5 Y4B XC6 W3D. देखो ZYXW अगला क्या हो जाएगा V. क्या हो जाएगा V. ABCDE V और E 5 4 तो VE होगा. 1 2 छोड़ो. VE तो एक ही जगह, तो B से ही पता चल जाएगा. ऑप्शन ये 2 स्टेप से पता चल गया. 23 अप्रैल 1995 को ट्यूसडे था, तो 23 अप्रैल 1988 को क्या होगा. तो 1995 को तो ट्यूसडे था, 1988 को क्या होगा. तो देखो काउंट कर लो कितने साल हो गया. पीछे जाना है. कितने साल पीछे जाना है. 5 6 7 साल पीछे जाना है. ठीक है. और एक लीप ईयर आएगा. कौन सा लीप ईयर आएगा. 1992. 1992 वाला आएगा और 1998 वाला तो नहीं आएगा, क्योंकि अप्रैल से शुरू हो रहा. फरवरी तक तो पहुँचे ही नहीं. जब फरवरी तक नहीं पहुँचे तो एक ही लीप ईयर होगा. तो 7 साल ही और एक लीप ईयर 8, यानी कि 8 ऑड डेज. 8 ऑड डेज मतलब 7 एक आया, यानी कि -1 कर दो. तो ट्यूसडे -1 मंडे. क्लॉक एंड कैलेंडर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए. मैं अभी समझाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा. In a certain code language, if beautiful is coded as this, then how word is technical coded? Beautiful को ऐसे कोड किया गया, तो technical को कैसे कोड किया जाएगा. कुछ नहीं किया गया है इसमें. क्या किया वॉवेल को एक तरफ कर दिया गया, कांस्टेंट को एक तरफ कर दिया. तो पहले वॉवेल को किया गया, पहले कांस्टेंट को किया गया, फिर उसके बाद वॉवेल को किया गया. देखो AEI. सीक्वेंस में अरेंज कर दो. BFLT और इसको ABCD का सीक्वेंस में अरेंज किया. B फिर F फिर L फिर T. पहले B आता फिर F फिर L फिर T फिर AEIUU. ठीक है. तो इस तरीके से अरेंज करो. तो ऑप्शन डी. समझ गया लॉजिक. ये क्वेश्चन रहेगा होमवर्क, पढ़ के खुद सॉल्व कर लो. ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था, फ्री का मार्क्स होता है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट 1. इफ सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट इज ट्रू, देन सम स्टूडेंट आर नॉट इंटेलिजेंट इज ऑल्सो ट्रू. सम स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है, ये ट्रू है. देन सम स्टूडेंट्स आर नॉट आई, क्या ये भी ट्रू है. सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो सम स्टूडेंट्स, if some students are intelligent, then some students are not intelligent. हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं गया. ठीक है. इससे हम डिड्यूस नहीं कर सकते इस चीज़ को. स्टेटमेंट 2. इफ़ ऑल लॉजिशियंस आर मैथमेटिशियन, सारे लॉजिशियन जो है वो मैथमेटिशियंस हैं, ये ट्रू है. देन सम नॉन मैथमेटिशियन, तो ये मैथमेटिशियन है तो नॉन मैथमेटिशियन होंगे कहीं. आर नॉट लॉजिशियंस, कुछ नॉन मैथमेटिशियंस है वो नॉन लॉजिशियंस होंगे. तो करेक्ट है. सिंपल सी बात है. सारे पोजीशंस कैसे हो सकते हैं. इस हिसाब से स्टेटमेंट 2 सही है. तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन.
इन अ सर्टेन कोड कैप को 75 लिखा जाता है, तो रूल को कैसे लिखा जाएगा? देखो कैप का अपोजिट पकड़ो, सी का अपोजिट 24, ए का 26, बी का 25, इसको जोड़ के आया 75। इस तरह रूल का हमें निकालना है। रूल का अपोजिट आर का 9, यू का 6, एल का 15, ई का 22, तो जोड़ के आ जाएगा 52, ऑप्शन डी। माउस को ऐसे लिखा जाता है, तो रैकेट को कैसे लिखा जाएगा? बस क्रिस क्रॉस, एम एन एक बढ़ा के ई एफ ओ पी एस टी यू वी, तो ये क्रिस क्रॉस वाला है, तो सिंपल है, लॉजिक समझ गए, तो ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले काम करो, देखो अलग ऑप्शन किसमें, सी में 3 3, तो पहले सी को चेक करते हैं, पीपल। तो पीपल का देखो, अगर हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करो, सी का या तो 3 होगा या तो 2 होगा, सी का तो या तो 3 होगा या तो 2 होगा। देखो 3 पहले चेक करते हैं, एन सी क्यू आर, देखो तो पी -2 एन ई -2 सी ओ +2 +2, तो -2 -2 +2 +2 -2 ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो सी का 3। तो सी का जब 3 होगा, ये दोनों ऑप्शन तो गया। अब डी का चेक कर लो, डी का 1 होगा कि 4 होगा? चलो डी का चेक करते हैं, तो डी का पहले 1 चेक कर लेते हैं। तो सिंगल का क्यू जी पी आई, तो इसमें -2 -2 +2 +2 -2 -2, सिंपल सेम लॉजिक लग गया। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। थोड़ा सा बुद्धि लगाना हो जाएगा। एक परसेंट का मतलब होता है लेस देन, डॉलर का मतलब होता है ग्रेटर देन, और हैशटैग का मतलब होता है इक्वल टू। तो ए % बी का मतलब ए लेस देन बी, इसका मतलब सी इक्वल टू डी, और इसका मतलब सी ग्रेटर देन बी। तो इसको अरेंज करो। अब देखो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये ए लेस देन सी, देखो ए लेस देन सी है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंपल। कंप्लीट द सीरीज 564 152 48 21 क्वेश्चन मार्क, क्या होगा? देखो 564 को डिवाइड कर दो 4 से, ठीक, और प्लस कर दो 11, तो ये आ जाएगा 152। फिर से सेम 152 को डिवाइड कर दो 4 से 38, और इसमें प्लस कर दो 10, तो कम होते जा रहा है, 11 फिर 10 फिर 9 फिर 8, इस तरीके से। इसको डिवाइड करो 4 से, प्लस कर दो 9, इसको डिवाइड करो 4 से, प्लस कर दो 8, या 13.25। अच्छा क्वेश्चन था। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन रीजनिंग का। आउट ऑफ 400 स्टूडेंट्स हु अटेंडेड अ सेमिनार 240 ऑप्टेड फॉर रिटन एग्ज़ाम, तो टोटल है 400, ठीक। रिटन एग्ज़ाम के लिए 240 ने ऑप्ट किया, ये वेन डायग्राम से बनेगा। 200 ऑप्टेड फॉर प्रेजेंटेशन के लिए 200, 160 ऑप्टेड फॉर असाइनमेंट, 160 असाइनमेंट के लिए, एंड 20 डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द गिवन 3 मेथड टेस्ट। 20 तो 400 थे, तो 20 ने तो एग्जाम ही दिया, तो 380 हो गए टोटल, 380, ठीक। 200 स्टूडेंट्स हैज एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 मेथड्स ऑफ टेस्ट। 200 स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 मेथड, एक ही मेथड है। चलो इसको नेमिंग कर दो, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। तो हमारे पास ये है अभी तक कि x + y + z और a b c d तीनों मिला कितना है 380 है, क्योंकि 20 तो एग्जाम ही नहीं दिया, ठीक है। x a b d 240 है, y a c d 200 है, और z b c d 160 है, दिख रहा है। कह रहा है कि x + y + z 200 है, ये स्टेटमेंट का मतलब एग्जैक्टली 200 स्टूडेंट्स हैज एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 मेथड, यानी कि x, y और z मिला के 200, लॉजिक सिंपल। तो जब x, y, z 200 है, तो ए बी सी डी कितना हो जाएगा 180, यहाँ से इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, तो ए बी सी डी का वैल्यू आ गया। पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 टेस्टिंग मेथड, a + b + c का वैल्यू पूछ रहा है हमसे, ठीक है। a + b + c हमें निकालना है, चलो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। तो a + b + c तभी निकलेगा जब हमारे पास d का वैल्यू आ जाए, तो d हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमें d का वैल्यू निकालने के लिए काम करते हैं, ये 3 जो है इसको जोड़ दो,
ये क्या आ जाएगा जोड़ने पे, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और ये डी 3 बार है, 3D इज इक्वल टू कितना, ये तीनों जोड़ोगे तो 600। सॉल्व करो, एक्स वाई जेड 200 दिया तो यहाँ 200 पुट कर दो, अब सिर्फ डी बचेगा, तो डी सॉल्व करने पर आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा, यहाँ से डी निकालेंगे तो 40 आ जाएगा, डी को पुट करेंगे 140 आंसर हो जाएगा। सॉल्व करना है, आंसर लाना है। तो इस हिसाब से वी हैव सॉल्व्ड ऑल द 100 क्वेश्चंस। Thank you. If you liked it, please subscribe or don't subscribe. It's your choice. Thank you.